Dear students, in this presentation today, we will be discussing about the textbook questions related to our second unit of chemistry, that is matter around us pure. हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट्स मीन्ट बाय ए प्योर सब्सटेंस। हम जानते हैं कि वी क्लासिफाई ऑल द सब्सटेंसेस इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। जो भी मटेरियल्स है उनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस, दैट्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ सेम और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज all the constituent particles of a pure substance have same chemical nature. For example, we have all the elements and compounds. Elements में हम example ले सकते हैं हाइड्रोजन की, हीलियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, इसी तरह आयरन की, मरकरी की, गोल्ड की, etc. In case of compounds, we have water, we have sodium chloride, we have hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, aluminum chloride, etc. The second question is, differentiate between the homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures have uniform composition. Heterogeneous mixtures have no uniform composition. Homogeneous mixtures have no visible boundaries of separation between its constituents, whereas in case of heterogeneous mixtures, there are visible boundaries of separation between its constituents. Example है, if we will dissolve salt in water or sugar in water, जो हमारे पास मिक्सचर बनता है that's a homogeneous mixture. अगर हम इसी वाटर में डिज़ोल्व करें सैंड, वो होगा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसमें वाटर भी आपको नज़र आ रहा है और सैंड के पार्टिकल्स भी। इसी तरह अगर आप ऑयल डालें, कुकिंग ऑयल, इफ़ यू विल पुट इट इन वाटर, वहाँ पे आपको वाटर की लेयर जो है अलग नज़र आएगी और ऑयल की लेयर अलग नज़र आएगी। दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस हैं, या ये अलग एक दूसरे से ये डिफरेंट कैसे हैं। हाउ सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, whereas suspension and this sol or the heterogeneous mixtures. So पहला point, जो sol है it's a colloidal solution, they are heterogeneous in nature. Solution is homogeneous in nature. Suspension जो है it's also heterogeneous in nature. In case of this sol, the particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer. In case of solutions, it is less than 1 nanometer. In case of suspensions, it is more than 100 nanometers. So we see Tyndall effect in case of colloidal solutions, and we see Tyndall effect in case of fine suspensions. But in case of these true solutions, they do not show Tyndall effect. We have discussed it in the previous presentations. Salts जो है, for example, we have blood or we have milk. These are quite stable. Suspensions होते हैं unstable. अगर आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे मड, या इसमें आप पानी में डालेंगे सैंड, after some time you will see that these particles will settle at the bottom. Solutions जो हैं they are very very highly stable, और सॉल्ट्स जो हैं वो भी स्टेबल होते हैं, बट सॉल्ट जो है इट्स ए heterogeneous mixture. So we can say salts जो हैं they are stable, solutions are highly stable, whereas these are unstable, suspensions are unstable. Examples हैं salt की मिल्क है, blood है, इसी तरह smoke. In case of solutions we have salt in water, sugar in water. In case of suspensions we have sand in water, or we can have one more example, that's mud in water or clay in water. Next question है, to make a saturated solution
एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होती है जिसमें एक किसी खास टेम्परेचर पे आप और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो आप 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हमारे पास होता है, ये सॉल्ट लेते हैं हम, इसको हम डिज़ोल्व करते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन के लिए हमें मालूम है, वी विल डू इट लाइक दिस। हम मास ऑफ द सॉल्यूट इसको हम डिवाइड करेंगे बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है यहाँ पर 36 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स। सो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट विल बी 136 ग्राम्स। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे बाय 136, विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। मास ऑफ द सॉल्यूट, कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की होगी मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द mass of the solution multiplied by 100. So it comes out to be 26.47%. Next question है, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 degree centigrade which are miscible with each other. So यहाँ पर जो boiling point की difference है it is more than 25 degree centigrade. So we can use the fractional distillation technique. अब मिसिबल है, मिसिबल का मतलब है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, आपको दोनों लिक्विड्स जो हैं वो एक ही फेज़ में नज़र आएंगे। सो यहाँ पर डिस्टिलेशन टेक्निक से हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट इट। सो हम एक इस डिस्टिलिंग फ्लास्क में हम लेंगे ये मिक्सचर और ऊपर से इसमें डालेंगे हम थर्मोमीटर, ठीक है। फिर इसको हीट करेंगे एंड दिस apparatus इज़ कनेक्टेड टू ए लिबिग्स कंडेंसर। तो जब हम हीट करेंगे पेट्रोल जो है वी विल चेक द टेम्परेचर रेगुलरली। पेट्रोल जो है ये वेपोराइज होगा फर्स्ट, वेपोराइज होने के बाद व्हेन इट विल पास थ्रू द कंडेंसर, तो आपके पास जो बीकर है यहाँ पर, सो आफ्टर कंडेंसेशन जो पेट्रोल है यू विल ऑब्टेन इट इन द बीकर और आपका जो केरोसिन है वो रह जाएगा इन द डिस्टिलिंग फ्लास्क। नाउ नेम द टेक्निक, सिर्फ टेक्निक का नाम बताना है। टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, इसको हम सिंपली अलग कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना है, सो हम यहाँ पे एवापोरेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टिलेशन भी। डिस्टिलेशन में हमारे पास वाटर भी जो है आफ्टर कंडेंसेशन वी विल ऑब्टेन द वाटर एंड जो सॉल्ट है वो रह जाएगा इन डिस्टिलिंग फ्लास्क। एवापोरेशन में हम सिंपली किसी भी यूटेंसिल में इसको लेंगे सी वाटर को, वी विल हीट इट, हीट करने से वाटर विल एवापोरेट एंड द रेस्ट जो सॉल्ट होगा वो रह जाएगा उसी यूटेंसिल में। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर जो है इसकी ये डायरेक्ट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जिसे हम कहते हैं सब्लाइमेशन। सो हम डायरेक्टली इसको हीट करेंगे, हीट करने से कैम्फर जो है इट विल एवापोरेट into gas. What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of crystals from a solution. The crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from the seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल्स, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया बॉन्ड नहीं बनता है और ना ही कोई उसमें रिएक्शन वगैरह होती है। सो व्हेन वी कटिंग ऑफ ट्रीज इट इज़ सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस, वहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होती है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इट्स ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, इस यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, सो इट्स ए केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म ए स्टीम, वाटर को हम बॉयल करेंगे इट विल फॉर्म स्टीम, स्टीम मीन्स गैशियस स्टेट, वेपर्स बनेंगे वाटर के आफ्टर बॉइलिंग, बट स्टिल जो वाटर है वो
ब्रेक नहीं होगा। स्टीम की भी फार्मूला है H2O, सो इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। स्टीम जो है कंडेंस होने के बाद इट विल अगेन फॉर्म वाटर। अगर हम इसे और ज़्यादा इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, बिलो ज़ीरो से नीचे लाएंगे, इट विल चेंज इनटू आइस। सो आइस होगा, वाटर होगा, या स्टीम या वाटर वेपर्स भी हम कहेंगे। तो ये सब जो हैं दीज आर द फिजिकल स्टेट्स, so it's not a chemical change. Passing of electron current through water and the water breaks down into hydrogen and oxygen gas, it's a chemical change क्योंकि water break हो रहा है into hydrogen gas and oxygen gas, so it's a chemical change. Dissolving common salt in water, अगर हम इसको फिर heat करेंगे, salt अलग हो जाता है, water अलग हो जाता है, so it's also not a chemical change. Making a fruit salad, it's also a फिज़िकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर और वुड को हम जब बर्न करते हैं, बर्न करने से डिफरेंट गैसेस और ऐश रह जाता है लास्ट में, सो इट्स ए केमिकल चेंज. वापस नहीं बन सकता है इसे इन दिस प्रोसेस पेपर एंड वुड, सो इट्स ए फिजिकल चेंज. Cutting of trees, so it's a physical change. Melting of butter in a pan, it's a physical change. Rusting of almirah, it's a chemical change. Iron oxide बनता है यहाँ पर. Boiling of water to form a steam is a physical change. Passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gas is a chemical change. Dissolving common salt in water is a physical change. Making a fruit salad is a physical change. Burning of paper and wood is a chemical change. Try segregating the things present around you as pure substance or mixtures and etc. हम जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, मोस्टली इट्स नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट स्टिल देन वी कंसिडर इट एज ए प्योर सब्सटेंसेस, एज ए प्योर सब्सटेंस. सो हम वाटर को ले सकते हैं, इसकी फार्मूला है H2O, इट्स ए प्योर सब्सटेंस. गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो यूज़ करते हैं मोस्टली फीमेल्स, वो है हमारे पास गोल्ड जो है एलिमेंट है, इट्स ए प्योर सब्सटेंस. शुगर विच वी यूज़, इट्स ए डाइसेक्राइड एक्चुअली, सो इट्स ए प्योर सब्सटेंस. सॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इट्स ए प्योर सब्सटेंस. एयर जो है हमारे पास, इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. हम ये से कह सकते हैं कि एयर मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन गैस में और गैसेस जो हैं दे आर मिक्सड इन इट. कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं दिस आर आल्सो मिक्सचर्स. सॉइल इज़ अ मिक्सचर. इसी तरह ब्रास जो हैं दिस आर द अलॉयज, तो ये मिक्सचर्स हैं. विच सेपरेशन टेक्निक विच यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको टेक्निक का नाम बताना है. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, इसे हम एवापोरेशन से भी और डिस्टिलेशन से भी अलग कर सकते हैं. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सिंपली हम इसे हीट कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड विल वेपोराइज. स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ द कार, फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं. डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, इसके लिए हमने पढ़ा है, वी कैन यूज़ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फॉर दिस. बटर फ्राम कर्ड, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल फ्राम वाटर, सिंपली हम यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल, क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं. टी लीव्स फ्राम टी, इसे हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं. आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, सो यहाँ पर आयरन जो है इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर. वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड देन वी हैव फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क के लिए हम विनोइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, एवापोरेशन टेक्निक से भी इस्तेमाल, बाय दिस एवापोरेशन वी कैन सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर. हम इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास वाटर भी जो है आफ्टर कंडेंसेशन उसको ऑब्टेन कर सकते हैं और साल्ट भी रह जाएगा इन डिस्टिलिंग फ्लास्क. अमोनियम क्लोराइड जो है ये सबलाइम होगा, सॉरी इट विल वेपोराइज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन यहाँ पर. स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, फिल्ट्रेशन से हम इसके जो है अलग कर सकते हैं दीज पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स. पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर, यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी से हम इन पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन. Oil from water by using simply a separating funnel. Tea leaves from tea, filtration. Iron pins from sand, magnetic separation. Wheat grains from husk, winnowing. Mud particles suspended in water,
यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। While making it steps you would use for making tea, use the words solution, solvent, solute. अब क्वेश्चन है कि while making tea इसमें हमें इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, डिज़ोल्व का, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू एक्स्ट्रा। तो पहले इसमें जो सॉल्वेंट होगा वाटर होगा। टी जो है tea can be prepared by following steps. Take 100 ml of water as solvent and boil it for few minutes. उसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर, वो होगा इसमें सो टी वाटर जो है इट विल बी सॉल्वेंट, शुगर जो हम इसमें डालेंगे इट विल बी ए सॉल्यूट, ठीक, डिज़ोल्व होगा वाटर में। उसके बाद हम इसमें टी लीव्स डालेंगे, ठीक, एंड हियर sugar, tea leaves and milk or solute. टी लीव्स जो है दिस आर नॉट एक्चुअली सॉल्यूट हियर, सो वी कैन से टी लीव्स और मिल्क जब हम इसमें ऐड करेंगे सो इसको बॉयल करने के बाद जब हमारी टी जो है रेडी हो जाएगी हम ये कहेंगे इसमें टी लीव्स जो हैं वो इनसॉल्युबल है, शुगर जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है। फिर हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। इसमें से टी लीव्स जो हमारे पास हो इसमें हैं दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर, तो हम उसे कहेंगे कि टी लीव्स जो हैं वो रेजिड्यू है। और इसी तरह जो आपके पास टी है दैट इज़ योर फिल्ट्रेट। जब हम चाय बनाते हैं इस चाय में while making the tea water will be the solvent, sugar will be the solute, tea leaves जो हैं they are not soluble, they are insoluble in this वाटर। सो जब हम इसे सेपरेट करेंगे, जब हमारे पास टी जो है रेडी है, बनी है अब, तो उसको सेपरेट करेंगे, टी लीव्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो रेजिड्यू होगा हमारा, और जो चाय है बाकी जो है पास होगी थ्रू द पेपर, दैट विल बी आवर फिल्ट्रेट। नाउ Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए गए हैं, उनको डिज़ोल्व किया गया है इन सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। 283 केल्विन है, 293 केल्विन, 313, 333 केल्विन, 353 केल्विन। यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। सो आपके पास जो सॉल्यूट है उसमें मैक्सिमम जो है सॉल्वेंट में मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हुआ है वो एट 283, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम्स है दिस वाटर के, उसमें आपने पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व किया एट 283 केल्विन, सो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हुआ 21 दिस ग्राम्स। इसी तरह सोडियम क्लोराइड इसी 100 ग्राम में एट 283 केल्विन 36 ग्राम्स, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम्स, अमोनियम क्लोराइड 25 ग्राम्स। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं सो आप देख रहे हैं जो है इस सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं उसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। क्योंकि आपने ये जो आपके पास टेबल है इसमें आपने कंसिडर किया है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम्स है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में अब दिया गया है कि आपके पास 50 ग्राम्स है वाटर। सो पहले आप देख लीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है एट 313 केल्विन कितना डिज़ोल्व होता है, 62 ग्राम्स 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व हो रहे हैं। सो अगर 50 ग्राम्स हम लेंगे सो इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 31 ग्राम्स।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इन पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What she will observe as the solution cools, explain. अब रूम टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड. So in this case the temperature at which the solute is dissolved is 353. So जब ये solution जो है इसको हम रखेंगे at room temperature, जो है temperature decrease होगा, it will be around 295 Kelvin के आसपास होगा. So इसमें जो solute हमने extra add किया है क्योंकि अब temperature decrease हुआ है, so the solute will crystallize at the bottom of the solution जिसमें आपने ली है. तीसरा है इसमें फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. 293 पे आप देख लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो उसके 32 ग्राम्स डिज़ोल्व होते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सोडियम क्लोराइड के 36, पोटेशियम क्लोराइड के 35, अमोनियम क्लोराइड के 37. सो एट 293 केल्विन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के 36, पोटेशियम क्लोराइड के 35 और अमोनियम क्लोराइड के 37. तो हो गई इनकी ये सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन टेम्परेचर पे. अब हाईएस्ट किसकी है इसमें, अमोनियम क्लोराइड की, क्योंकि इसके डिज़ोल्व होते हैं 37 ग्राम्स. विच व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट. अब आप देख रहे हैं इसमें कि जब हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल टेक द फर्स्ट वन पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन पे डिज़ोल्व होते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 21 ग्राम. 293 पे होते हैं डिज़ोल्व 32 ग्राम्स. 313 पे होते हैं डिज़ोल्व 62 ग्राम्स. सो जब टेम्परेचर इसी तरह हम देख रहे हैं इन केस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम्स, फिर 35 ग्राम्स, फिर 40 ग्राम्स, फिर 46 ग्राम्स. टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हम कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख लीजिए जब टेम्परेचर प्रज्ञा इंक्रीज़ कर रही है, जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की जो डिज़ोल्व हो रही है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, सो वो इंक्रीज़ हो रही है. दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. और अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करें, फॉर एग्जांपल हम 353 से नीचे आएंगे, दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज़. सो इन द फर्स्ट केस 31 ग्राम्स जो है इन 50 ग्राम्स, सो यू कैन सी हियर. In the second case, some soluble potassium chloride will separate out in the form of crystals at room temperature because the solubility of potassium chloride will decrease, क्योंकि temperature decrease हो रहा है. थर्ड पार्ट इसका था कि 293 केल्विन पे जो है solubility किसकी कितनी है, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इसमें सॉल्वेंट है, और ये बाकी जो है केमिकल कंपाउंड्स दिस आर द सॉल्यूट्स. पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स एट 293 केल्विन. अमोनियम क्लोराइड की है 37 ग्राम्स डिज़ोल्व होते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. सो हाईएस्ट जो है सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड की है एट 293 केल्विन आउट ऑफ दिस 4. इसी तरह कि जब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस और कोलॉइड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और किसी खास टेम्परेचर पे हम उसमें अब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी कि 100% जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है. सो वी कैन डिफाइन इट, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, in aqueous solution of sugar no more sugar can be dissolved at room temperature. या अगर आप यही प्रज्ञा का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देख लें एट 293 केल्विन, इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर वो है 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो वी कैन से एट 293 केल्विन दे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में हम 100 ग्राम में सिर्फ 36 ग्राम्स ऑफ
दिस सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं। सोल्यूशन जो होगी वो होगी सैचुरेटेड। अगर हम इसमें 1 ग्राम या और 1.5 ग्राम ऐड करेंगे दैट विल सेटल एट द बॉटम, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस हमने ऊपर भी पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि वो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। कोलाइड जो है इट्स ए हेटेरोजेनस मिक्सचर, लेकिन हमें लगता है अपीयरेंस से कि होमोजेनस है, बट इट इज़ हेटेरोजेनस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोलाइड्स जो हैं दे शो टिंडॉल इफेक्ट। इनके थ्रू जब हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं वो बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाती है मिक्सचर के थ्रू। दैट्स वाई वी से दीज आर द हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। A colloid is a heterogeneous mixture whose particles are not as small as solution, but they are so small they cannot be seen by naked eye. 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स होता है इनके पार्टिकल का साइज़, और दे शो टिंडॉल इफेक्ट। सस्पेंशंस भी हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, और नेकेड आई से हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं, और इनमें पार्टिकल साइज़ जो है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। एंड दे ऑल्सो शो द टिंडॉल इफेक्ट। इसमें एग्जांपल है मडी वाटर है, चाक वाटर है, एक्सेट्रा। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। आपके पास सोडा वाटर है, इस वाटर में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास वुड है, यानी वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम कहते हैं दिस सोडा वाटर। वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। इसमें होमोजेनस मिक्सचर आपका सोडा वाटर है, ये सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इस तरह एयर जो है ये मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। विनेगर भी और फिल्टर्ड टी जो है वो भी एक मिक्सचर है। हेटेरोजेनस इसमें है वुड और सॉइल। How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? आपको मान लीजिए बीकर में कोई भी लिक्विड दिया गया, अब आपसे कहा जाता है कि आप कैसे कहेंगे कि ये जो है ये इसमें जो सब्सटेंस लिक्विड मौजूद हैं ये वाटर ही है। तो सिंपली हम इसे हीट करेंगे। अगर ये वाटर होगा इट विल बॉयल एग्जैक्टली एट, और प्योर वाटर होगा इट विल बॉयल एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इसने बॉयल किया, लिक्विड बॉयल हुआ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल वेपोराइज। सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपोराइजेशन होगी, देन वी कैन से कि ये लिक्विड जो है it is water. Take a sample of the colorless liquid and put it on stove. If it starts boiling exactly at 100 degree centigrade, then it's pure water. Any other colorless liquid such as vinegar always have different boiling points. Also observe carefully that after some time whole liquid will convert into vapor without leaving any residue. इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन कौन है? आइस प्योर है क्योंकि ये वाटर ही है। मिल्क एक कोलाइड है, सो इट्स नॉट प्योर। आयरन जो है एलिमेंट है प्योर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है प्योर। कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है प्योर। मरकरी एलिमेंट है प्योर। ब्रिक जो है ये मिक्सचर होता है। वुड इज ऑल्सो मिक्सचर, आयर इज ऑल्सो मिक्सचर। इनमें से आप देख लीजिए सोल्यूशन कौन है। सॉइल जो है मिक्सचर है, सोल्यूशन नहीं है। सी वाटर जो है इसमें सोल्यूशन है क्योंकि इसमें वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स। एयर जो है इट्स ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। कोल जो है ये सोल्यूशन नहीं है। सोडा वाटर जो है मैंने आपसे कहा कि इसमें लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज़ ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। टिंडॉल इफेक्ट इसमें से कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट मैं फिर से बता दूं यहाँ पर कि जो आपके पास ट्रू सॉल्यूशंस होंगी, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, वहाँ पे पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसी तरह आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये ट्रू सॉल्यूशन है, सो दे डू नॉट शो द टिंडॉल इफेक्ट। स्टार्च सॉल्यूशन जो है ये एक सस्पेंशन है। इसी तरह मिल्क जो है ये एक कोलाइड है। These two will show the Tyndall effect. Classify the following into elements, compounds and mixtures. सोडियम एलिमेंट है, सॉयल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन तो मिक्सचर ही है, सिल्वर जो है इट इज़ एन एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है,
टिन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, कोल इज़ मिक्सचर, एयर मिक्सचर, सोप मिक्सचर, मीथेन CH4 इसकी फार्मूला है, ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है। सो एलिमेंट इसमें सोडियम है, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन। कंपाउंड्स जो आपके पास इसमें दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर्स में आपके पास सॉइल है, कोल है, एयर है, सोप है और ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग और केमिकल चेंजेस? ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये केमिकल चेंज है। हम इसे केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो है दे कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम कहेंगे कि उसकी वजह से फिर ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है। सो इट्स ए केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसमें आयरन ऑक्साइड बनता है, सो इट्स ए केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, छोटे छोटे इसके आयरन के जो हैं फिलिंग्स और सैंड, ये मिक्सचर बनता है। मैग्नेटिक सेपरेशन से हम आयरन फिलिंग्स इसमें अलग कर सकते हैं, तो इट्स अ मिक्सचर। कुकिंग ऑफ फूड जो है ये एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है, इसमें ब्रेक डाउन होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज आल्सो ए केमिकल चेंज। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स इसमें है ग्रोथ ऑफ द प्लांट केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। सो ये हो गए इस यूनिट के जो हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जो है इसके यूनिट के रिलेटेड और जो है एडिशनल क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे।